Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I'm Mr. Saidullah Khan again in front of you having a new topic that is called adjective, the parts of the speech. Parts of speech में से एक topic है adjectives. Inshallah today we will learn it. The pronunciation of this word is adjectives. Adjectives. D is little bit silent. Adjectives. Okay. Now, adjectives. What are adjectives? Try to understand. Actually, these adjectives have different definitions, different views, opinions about the peoples of this world. But my opinion and what I understood and what I got, I just tell you. Listen, adjective actually the word which modifies noun or pronoun or qualifies a noun or pronoun. Look at here. Or a describing word is also called adjectives. Adjectives qualifies. 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 Adjective qualifies a noun. Qualifies or modifies कर देते हैं. MODI model. FIES modify. Adjective qualifies or modifies a noun, 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 or a pronoun, noun or a pronoun. Getting? So this has become a definition. तो समझ लीजिए एक हमारी definition बन गई है कि adjective qualifies or modifies a noun or pronoun. बहुत short word में अगर कहें तो describing words भी कहलाते हैं. Adjectives are called describing words. अब ये describing words कैसे देख लीजिएगा, अभी समझाते हैं. Describing words भी कहते हैं. Describing word ऐसा लफ्ज जो किसी न किसी noun या pronoun को describe करे, that is called adjectives. That is called adjective. Describing words. But मैं describing words से इसलिए इज्तिनाब बरत रहा हूँ, इस पे फोकस करने से, इन पे फोकस कर रहा हूँ. Qualifies or modifies a noun or pronoun. I'm not focusing is here because describing also adjective, but adverb also describe an action. Okay, so what, an action is a describing word or not? Action, sorry, adverb is a describing word or not? But it describes who, what, verb, an adjective or another adverb. So that is why it is adverb. So इसलिए सिर्फ describing word नहीं होगा, describing words of noun और pronouns. ऐसे words जो noun और pronoun को describe करें तो फिर हम उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे पास adjective है. तो describing words of noun और pronoun या words which describe noun or pronoun, इसलिए focus मेरा इस पर है qualifies or modifies a noun or pronoun. I think so you have understood it. Getting? Now next, let some examples. Example number 1 about adjective. Example. Suppose if I write here, she is a good, she is a good lady. Yes, she is a good doctor. She is a good doctor. My dear, look at here, full of care, with open ear. Okay, she, here is a pronoun, is a good doctor. Doctor is a noun. Okay, and good is describing whom? Doctor. Okay,
She is a doctor. She is a good doctor. Who is a good doctor? She. Okay. She is a good doctor. The good describing here noun, but it is a pronoun. Okay. Noun या pronoun को describe करता है. That is called adjective. So here we put adj adjective. Good is adjectives. Getting? Do you understand it? Now, next example we have number 2. He is a naughty, naughty boy. He is a naughty boy. Who is a naughty boy? He. What boy he is? Naughty. Okay. What is the quality of the boy? Is naughty. Okay. Next, it is adjective, or this one is noun. We're describing a boy. Okay. Adjective को यूँ भी कह सकते हैं कि means quality, describing a quality of anything, whether the quality is good or whether is the quality or bad, whether the quality is good or bad. Quality अच्छी भी हो सकती है, quality bad भी हो सकते हैं. हमें इससे नहीं बल्कि वो quality describe करता है. तो यूँ कर सकते हैं quality describing word is called an adjective. यूँ भी कह सकते हैं इसे. Getting? Now, example number 3. Yes. Ahmad, Ahmed. Ahmad is an honest, Honest, honest man. Ahmad is an honest man. Look at here. What type of man? Ahmad. Honest. So noun man. Okay, describing a noun. What type of man? Honest man. So who is the man? Ahmad. Okay. So who is the man? Ahmad. So here we use it is an adjective. So honest is also adjective. Dishonest is negative. Okay. इसका negative pose हो जाता है. Right. Now number 4. It is a dirty, dirty class. CLASS class. Dirty class. What is the quality of the class? What is the condition of the class? Dirty. So this condition is adjective. So this one is describing a class that in which we can say that dirty is here as an adjective. Do you get my idea? Do you get my idea? Okay. Now, number 5. If we come to the number 5, so number 5 examples, if I write this book is mine, M-I-N-E, mine. What is adjective here? What is adjective here? My dear, it is an adjective. This is an adjective. Book is a noun. Because this describing or modifying this book. This book is mine. Okay? Or this is my book. So this is means demonstrative. So it is demonstrative adjective. I have already cleared in my previous lecture about the demonstrative noun or pronoun. Okay? And demonstrative pronoun, demonstrative adjective as well. Getting? So inshallah, when I will just describing the kinds of adjectives, so I will define you what kinds of adjective are there, how many kinds, what type of kinds of adjective. Inshallah, I will describe it. Today, I am just only giving you the concept of the adjectives. So what are the adjectives? Getting? Now, number 6. We have another example. Number 6. Number 6 example. Suppose if I say, yes, she is an intelligent. She is an intelligent girl. Now look at here. Intelligent girl, quality of a girl. So that is why it is called as an adjective. This one is a noun describing the girl. That is why it is an adjective.
Now if I write here number 7, if I write here number 7, so look number 7, yes, I, yeah, he has, he has enough, ENOUGH, enough money, MONEY, he has enough money, he has enough money to buy this book. To buy a book, to buy a book, he has enough money to buy a book. Look at here, he has enough money. Money is here as a noun, of course, is a noun, and enough. Enough shows here the quantity, okay? Enough money. So enough is used here as an adjective, because it describing a noun. But enough is also used as an adverb. Getting? As an adverb भी इस्तेमाल होता है enough. कैसे? हम कहते हैं he is old enough. अब old adjective, enough, enough मैं पिछले अभी क्लास में आपको बता चुका था, ये डिग्री होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं है, अभी यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब डिग्री कब होता है? या तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता, या फिर ये वर्ब को डिस्क्राइब करता, या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता। ये तो डिस्क्राइब नाउन को कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इनफ इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। गेटिंग? नाउ example number 8, look at here, example number 8, swimming jacket, SWIMMING, swimming jacket, JACKET, swimming jacket was stolen, 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 स्विमिंग जैकेट जो था वो जो है चोरी हो गया। नाउ माय डियर, स्विमिंग जैकेट, दिस द स्विमिंग यूज एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? ये जेरेंड है। जेरेंड पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, सॉरी जेरेंड नहीं, पार्टिसिपल, ठीक है, ये पार्टिसिपल। स्विमिंग जैकेट, स्विमिंग जैकेट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ जैकेट? What is the quality of a jacket? Okay, अब ये जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये एज ए मीन्स पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, ये PARTICIPLE पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये डिस्क्राइबिंग कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिस्क्राइबिंग एन एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब हुआ। व्हाट टाइप ऑफ जैकेट? स्विमिंग जैकेट। कौन सा जैकेट की बात कर रहा है? स्विमिंग जैकेट। तो अब देखिए यहाँ पर ये नाउ वो मीन्स पार्टिसिपल है और क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। एक्चुअली ये अभी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, उसमें आपको पता चला है जेरेंड इज यूज्ड ओनली फॉर नाउन, पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब। सो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, दैट इज व्हाई स्विमिंग इज आल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एक्चुअली ये पार्टिसिपल है, अगर पार्टिसिपल का ऑप्शन है तो वो भी है, और नहीं एडजेक्टिव, यू भी एडजेक्टिव होते हैं। सपोज another example, past participle में भी एडजेक्टिव होते हैं। नंबर 9, सपोज look at number 9, yes, I met, MET, I met an educated, EDUCATED, an educated family, FAMILY. Look at it, I met an educated family. So my dear, educated is used here as an adjective quality describing the family. That's why we can say it is also used here as an adjective, educated. So the past participle or present participle, they can be used as as a verb or as an adjective. So as an adjective भी इस्तेमाल हो सकते हैं, as a verb भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वो past और present participle होते हैं, ये भी adjectives होते हैं। Getting?
अभी हमने काइंड्स इसकी नहीं बताई हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं. आई थिंक सो यू हैव got this idea. Now come to the another topic over there, that is called the degrees of adjectives. Okay, I'm just going to remove it and try to make you understand. Adjectives में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर degrees of an adjectives. डिग्रीज क्या होती है एडजेक्टिव की? हैव यू एवर हर्ड और रेड? कभी आपने पढ़े हैं, सुने हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज कौन कौन सी होती है? आइए आज आपको डिफाइन कर देते हैं इंशाल्लाह. आई होप यू विल लर्न मच बेटर. ओके, नाउ डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव्स. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. The name of the degrees, do you know what are the names of the degrees of an adjectives? Look at here. Suppose the first name of the degree of adjective is positive, positive, second comparative, comparative, third superlative. Comparative, superlative. These are the name of the degrees: positive degrees, comparative degrees, and superlative degrees. And what are the positive degrees and comparative degrees and superlative degrees? Today we'll just mention you here, okay, why they are used and why they need to use in a sentence or lesson. Positive means have no comparison. Positive means has no comparison. Okay, but here comparative, it means it has a comparison between two things. Between two things, comparison. But superlative, it means it's also comparison, but it is among all. It is among all. सबसे ज़्यादा superlatives तमाम में सिर्फ एक जो सबसे आला या सबसे बुरा, उसको हम ये superlative कहते हैं, आला दर्जे को. ये दर्जे होते हैं, डिग्रीज हम दर्जे को कहते हैं. नेक्स्ट, पॉजिटिव. सपोज हमारे पास एक वर्ड है स्मॉल, SMALL, स्मॉल. अगर हम इसे लिखें, सपोज मैं लिखता हूं नंबर 1, इट इज अ SMALL, स्मॉल. इट इज अ स्मॉल शॉप, SHOP, शॉप. इट इज अ स्मॉल शॉप. ठीक है, ये एक छोटी सी दुकान है, स्मॉल शॉप. And I said the small, so I am not comparison. Okay, मैंने कहा एक छोटी सी दुकान है. लेकिन अगर मैं इसको comparative करूँ तो मैं क्या करूँगा? SMALLER, smaller. Okay, two things, या दो एक से या किसी से भी compare करूँ. So इसकी जो हो जाएगी example वो यहाँ हो गई. जैसे suppose मैं कहता हूँ this shop, this SHOP shop, the shop is smaller, SMALL, is smaller than smaller than the previous one, the previous, previous one. पिछली वाली दुकान से ना ये दुकान थोड़ी छोटी है. ठीक है, ये अब कंपैरिजन आ गई. प्रीवियस वन, पिछली वाले से, यहाँ कंपैरिजन नहीं थी. ओके, देन द सुपरलेटिव. दो चीजों के अंदर सुपरलेटिव अमंग ऑल. हम कहते हैं स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट. अब हम इसको कह सकते हैं नंबर 3, this is the this is the SMALLEST, smallest shop. This is the smallest shop in the market. अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसको भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ना बेटा,
ये अमंग ऑल इन द मार्केट, मार्केट में तमाम दुकानों से छोटी की बात कर रहे हैं, द स्मॉलेस्ट। और इससे पहले हमने आर्टिकल द लगाया है, देखिए द स्मॉलेस्ट, यानी इससे छोटी कोई नहीं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो रही है बात? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारी कुछ डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। इन एडजेक्टिव की डिग्रीज को मेरे बच्चे इस्तेमाल, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया इसके यूजेज। ओके, इसके यूजेज मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा है। अब देखिए इसमें एक और चीज, ये था स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसी तरह एक वर्ड है हमारे पास गुड, ये भी क्वालिटी है ना किसी की। इसका जब कंपैरेटिव बनता है तो बी ई डबल टी ई आर, बेटर बनता है। और इसका जब सुपरलेटिव बनता है तो बी ई एस टी, बेस्ट बनता है। एक इसी तरह हमारे पास वर्ड है लेजी, एल ए जेड वाई, लेजी। कंपैरेटिव बनाएंगे एल ए जेड आई ई आर, लेजियर। और सुपरलेटिव बनाएंगे लेजिस्ट, एल ए जेड आई ई एस टी, लेजिस्ट। ओके, इसी तरह एक और है हमारे पास क्लेवर, सी एल ई वी ई आर, क्लेवर। कंपैरेटिव बनेगा सी एल ई वी ई आर ई आर, क्लेवर। सुपरलेटिव बनेगा सी एल ई वी ई आर ई एस टी, क्लेवरिस्ट। गणे समझ आ रही बात? अच्छा, एक और बात बताऊंगा अभी इसमें। पहले देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। एंड वन मोर, हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई, ब्यूटी, एफ यू एल, फुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनता है मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई, ब्यूटी, एफ यू एल, फुल, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, एम ओ एस टी, मोस्ट, बी ई ए यू टी आई, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन गया। एक वर्ड हमारे पास है मच, एम यू सी एच, मच। या हमारे पास वर्ड है एम ए एन वाई, मैनी। मच और मैनी, इन दोनों का जो कंपैरेटिव बनता है वो बनता है मोर, एम ओ आर ई, मोर, ठीक है। और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट, एम ओ एस टी, मोस्ट। गेटिंग? समझ आ रही है बात? इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है बी ए डी, बैड, या आई डबल एल, इल। बैड आ जाए या इल आ जाए, इनका जब कंपैरेटिव बनता है तो बैड का जो बनता है बेटा वर्स बनता है, डब्ल्यू ओ आर एस ई, वर्स। इल का भी वर्स और बैड का भी वर्स। और सुपरलेटिव जो बनता है डब्ल्यू ओ आर एस टी, वर्स्ट। ओके, ये तीन अभी यहाँ पे कुछ मैंने कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखी हैं। अब मुझे ये बताइए, जब हमने लिखा है स्मॉल तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाया हमने? ई आर, स्मॉलर, देखिए ये लगाया ई आर, स्मॉलर। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाया? ई एस टी। मोस्टली जब हमारे पास ऐसे वर्ड हो जो मोनोसिलेबल हो या डायसिलेबल, मोनोसिलेबल और डायसिलेबल क्या होते हैं, इसमें मेरा एक लेक्चर है, देख लीजिएगा सिलेबल्स पर। तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिलेबल क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिलेबल एक्चुअली व्हाट आर द सिलेबल। अभी मैं सिर्फ मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, डिटेल जाएंगे तो इंशाल्लाह एक मजीद वीडियो बना दूंगा आपको। तो सुन लीजिए, सिलेबल वो होते हैं जिनमें हम जो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो उन वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को अगर वो वर्ड्स एक वॉइस में, वन वॉइस में प्रोनाउंस हो रहा है तो मोनोसिलेबल, डबल वॉइस में प्रोनाउंस हो रहा है दो मरतबा तो वो डायसिलेबल, इसी तरह ट्रायसिलेबल, इसी तरह पॉलीसिलेबल, इसी तरह पेंटा है, हेक्सा है, ये सारे सिलेबल होते हैं। तो इनको हम कहते हैं सिलेबल्स। सपोज अब देखिए स्मॉल, एक ही साउंड में एक ही मुंह खुला और बात हो गई स्मॉल, 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 इसलिए क्या हो गया स्मॉल, स्मॉलर। आप कहेंगे सर ये गुड भी तो है, गुड, गुड, एक ही प्रोनाउंस हो रहा है तो फिर यहाँ बेटर और बेस्ट क्यों है? देखिए गुड, बेटर, बेस्ट कुछ ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जिनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता, बल्कि वो जिस तरह कहे जाते हैं वो वैसे बोलने पड़ते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, इसकी भी एक रीज़न, जब
इंशाल्लाह मज़ीद और बताऊंगा। अभी देख लीजिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ, इसमें सिर्फ ई आर लगाया, इसमें ई आर लगाया, इसमें भी ई एस टी बेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट। तो अब देखिए इसमें एक्चुअली ये जो है ये कंपैरेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेजी लेजियर लेजिएस्ट, वाई आया था इसलिए आई ई आर लगाया, आई एस टी लगा दिया, सुपरलेटिव बना दिया। यहाँ पे क्लेवर है, क्लेवर कर दिया, क्लेवरेस्ट कर दिया। इसी तरह अब ये देखिए वर्ड तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हमने मोर क्यों लगाया, ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल का और मोस्ट ब्यूटीफुल का, ये क्या वजह है? ब्यूटीफुल में हमने मोर और मोस्ट क्यों लगाया? सुन लीजिए, जब हमारे पास ट्राई सिलेबल वर्ड है, इधर देख लीजिए, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। अगर इसे हम पढ़ें तो हम इसे यूं पढ़ते हैं, ब्यू एक्स और टी, ब्यूटीफुल। तो इसको यूं लिखा जाएगा सिलेबस में, बी ई ए यू ब्यू और टी आई ब्यूटी और एफ यू एल फुल। तो कितने सिलेबल हो गए? अब देख लीजिए, ट्राई सिलेबल हो गया, ब्यू टी फुल। इसमें हमारी वॉइस ब्यू पे आके रुक रही है इसलिए वन सिलेबल, फिर टी पे रुक रही है टू, फिर थ्री, फुल पे रुक रही है थ्री, तो ट्राई सिलेबल हो गया। अब जो ये ट्राई सिलेबल वर्ड्स होता है, ट्राई सिलेबल एडजेक्टिव, इसको जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो मेरे बच्चे, ट्राई सिलेबल वर्ड्स को जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो ट्राई सिलेबल वर्ड से पहले मोर उसका कंपैरेटिव लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है। इसलिए यहाँ मच और मोर मच और मैनी की मोर होती है और मोस्ट इसकी सुपरलेटिव होती है, ये इनके साथ इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ये एडवर्ब भी बन सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। लेकिन आप देख लीजिए, बैड और इल, इनकी भी वर्ड्स होती है। कोई इल को इलर और इलेस्ट कर देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वर्ड्स, हिज कंडीशन इज वर्ड्स, इज इल, his condition is worse, worst and worst. Getting? So I think so you have understood the lecture, adjectives and the degrees of adjective. Inshallah in the next lecture we will learn the kinds of adjectives. Okay, please subscribe my channel and then convey it to others and give me the comments. Inshallah शाद रहिए, आबाद रहिए। इस दुआ के साथ अपने टीचर सईदुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।